السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم ناظرین کرام، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت امت اسلامیہ کے درمیان دینی شعور کو پیدا کرنے کے لیے اور دینی تعلیم سے آگاہی اور کتاب و سنت سے قریب کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سید ایوب عمری دوسرا درس لے کر عقیدہ توحید سے متعلق لیول 3 کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ پچھلے درس میں ہم نے شرک سے متعلق اس کی تعریف اور چند اسباب جن کی بنا پر شرک کو سب سے عظیم ترین گناہ کہا گیا ہے، میں نے آپ کے سامنے 4 سبب پیش کیے تھے کہ وہ کس وجہ سے شرک کو عظیم گناہ کہا گیا تھا۔ تو 4 ہم نے سبب پڑھ لیے تھے، تو مختصر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، جو اللہ رب العالمین جو خصائص الوہیت کے اندر خالق سے مخلوق کو تشبیہ دی جاتی ہے جن خصائص میں، اس وجہ سے یہ کیا ہے، بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ جو کوئی بھی مرتکب ہوتا ہے اس کا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ چوتھا جو سبب ہم پڑھے تھے کہ چوتھا سبب جو عظیم گناہ ہونے کے لیے کہ اس کے تمام نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ غارت کر دیں گے، کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ شرک جیسے گناہ کی ملاوٹ کے ساتھ دوسرے نیک اعمال کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ آج کے درس میں ہم بقیہ اسباب کی طرف روشنی ڈالیں گے۔ تو محترم سامعین، آپ لوگوں کے پاس سلیبس پہنچا دیا گیا ہے گروپوں میں، آپ لوگ کتابیں اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اور وہ ہمارے ساتھی جو اس ہفتے جوائن ہوئے ہیں، جو پہلے درس سے مستفید نہیں ہو سکے، تو مجھ سے پرسنل پر رابطہ کریں تو میں انشاءاللہ ان کو پہلا درس بھیج دوں گا، یا نہیں تو آپ میں انشاءاللہ درس کے نیچے جب بھیجوں گا آپ کو تو لنک دے رہا ہوں، لنک دی جا رہی ہے آپ کو یوٹیوب میں، آپ لوگوں کی بہترین رہنمائی کے لیے، آسانی کے لیے، سیکھنے کے لیے یوٹیوب پر یہ دروس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ وہاں سے بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ تو آج جو 5واں سبب جو ہے کہ شرک کیوں اتنا بڑا عظیم گناہ ہے، وہ یہ سبب ہے کہ مشرک کا خون بہانا اور اس کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے، جیسا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ سورہ توبہ کی، کیونکہ سورہ توبہ کی جو آیتیں، ابتدائی آیتیں وہ جنگ سے متعلق ہیں، اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب عمومی مطلب نہ نکالا جائے کہ جہاں کہیں، بلکہ جو وہ مشرک، وہ کافر لوگ جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ارادے سے نکلے ہیں، جو مسلمانوں کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے آئے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آئے ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور حالت جنگ میں ہیں، اور اگر آپ ان کو نہ مارے تو وہ آپ کو مار دیں گے، ایسی حالت ہے۔ تو آپ کیا کرو، جہاں ان کو پاؤ اپنی جان بچانے کے لیے آپ قتل کریں اور انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ یہ جنگی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، سورہ توبہ کی اگر آپ ابتدائی آیتیں پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیونکہ یہ سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے قرآن میں جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوئی ہے، یہاں سیدھا سمجھی جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے، ایک دھمکی کے طور پہ یہ ابتدائی آیتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جاؤ مسلمانوں، کیونکہ اتنا زیادہ ظلم بڑھ چکا تھا مشرکین کا،
कुफ्फार का कि वो मुसलमानों को क़त्ल करने लगे थे, मुसलमानों के माल को हलाल समझते थे। तो हालत जंग में की जाने वाली ये चीज़ें हैं जो बयान की गई हैं। तो हालत जंग में जब आपको कोई काफिर मिलता है तो उसका माल, उसका खून सब हलाल हो जाता है। सही बुखारी सही मुस्लिम की एक हदीस है, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से क्या क़िताल करूं, लोगों से क्या उनसे जंग करूं, यहाँ तक कि वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बराक़ नहीं है। फ़इज़ा क़ालूहा, जब वो कहेंगे असमु मिन्नी दिमाउहुम व अमवालुहुम इल्ला बिहक़्क़िहा, जब ये लोग कलमे हक़ कह देंगे, कलमे के कायल होंगे, तो उनका खून और अपनी जायदाद को मुझसे बचा लिया। हाँ, अब इस कलमे का जो हक़ है वो उन पर बाक़ी रहा। मोहतरम सामीन, यहाँ एक बात वजाहत करना आप लोगों से ज़रूरी करता हूँ कि क़िताल कब है, ये आखिरी हिस्सा है। पहले आप उनको दावत दी, और ये जो भी क़िताल होगा वो हाकिम वक्त के हुक्म पर होगा, सेपरेटली इंडिविजुअली अपने आप नहीं होगा, बल्कि हाकिम वक्त की हुक्म पर होगा। और वो हाकिम वक्त होना चाहिए मुसलमान, मुत्तबे किताब व सुन्नत, है ना। तो पहले आप उनको जाकर दावत इस्लाम को देंगे, अगर वो मान लें तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम। अगर वो ना मानते हैं तो आप उनसे जिज़िया ले लेंगे, बोलेंगे आप इस्लामी स्टेट में रहते हैं तो आप टैक्स दें, नहीं है तो तीसरी चीज़ क्या है, तो अगर वो आपसे फिर लड़ने झगड़ने, आप क्यों हमको दावत देते हैं, वो लड़ने झगड़ने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, तब ये क़िताल होगा। मैंने पहले वजाहत कर दी कि क़िताल ये हाकिम वक्त का के हुक्म पर होगा, बग़ैर उसके या टोली बना लें, कोई जमात बना लें, कोई ग्रुप बनाकर इस तरीके से जिहाद या उनसे क़िताल नहीं होगा, बल्कि हाकिम वक्त बहुत बड़ा है और ये आखिरी हिस्सा है जिहाद का। लोग इसको गलत मफ़हूम में ले जाते हैं, इसका माना व मतलब गलत समझते हैं, जिनकी वजह से आज इस्लाम की गलत तर्जुमानी होती है, इस्लाम के गलत पैगाम को गलत अंदाज में इस्लाम के पैगाम को रखा जाता है। इन आयत का जो सही माना व मतलब तफासिर जो हैं वो हमको मुकम्मल पढ़नी चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उसके बाद किसी बात पर हुक्म लगाना चाहिए। छठा सबब यह है कि शिर्क क्यों इतना बड़ा अजीम गुनाह है, कि शिर्क तमाम बड़े गुनाहों में सबसे बढ़कर अजीम तरीन गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, कुलना बला या रसूल अल्लाह, क़ाल अल इशराकु बिल्लाह व हुक़ुक़ुल वालिदैन। ये लंबी हदीस है, उसमें और भी ज़िक्र हैं, जादू का ज़िक्र है, और उसमें दूसरा क्या है, मोमिनात जो पाक दामन औरतें उन पर बहतान बांधना है, मैदानी जंग में पीठ दिखाकर भाग जाना है, इस तरीके से बहुत से अजीम गुनाह हैं। यहाँ दो का जिक्र आपके लिए, शिर्क, क्योंकि हमारा मौजू शिर्क है, इसलिए यहाँ सिर्फ दो ही बातों को जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों में से सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बतलाऊं? तो सब ने कहा हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की नाफरमानी भी ये अजीम गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, और सबसे बड़ा जो गुनाह है वो है शिर्क। तो इस वजह से छठा सबब यह है बताया। यहाँ साहिब किताब कहते हैं, बस शिर्क तमाम जुल्मों में सबसे बड़ा जुल्म है और तौहीद तमाम अदलों में सबसे बड़ा अदल है। लिहाजा जिस चीज़ के अंदर इस मकसूद अजीम यानी तौहीद से जितनी ज़्यादा मुनाफ़ात और दूसरी यानी मुखालफत होगी, यानी तौहीद से इसका टकराव जिस कदर होगा, वो चीज़ इतनी ही बड़ी कबीरा गुनाह शुमार होगी। मोहतरम सामीन, सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए आगे फरमाया कि जब शिर्क बजाते खुद इस मकसूद यानी तौहीद के सरासर मुखालिफ और मुनाफी हो, तो वो यही तौर पर तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे अजीम तर गुनाह ठहरा। ये तो बात वाज़ेह है, और इसी बिना पर अल्लाह ताला ने जन्नत को मुशरिक पर हराम कर दिया है, और तौहीद परस्तों के लिए इनका खून, माल और अहलो अयाल को मुबाह कर दिया है। अल्लाह वाहिद के हक़ उबूदियत ना अदा करने की वजह से अहले तौहीद के लिए ये मुबाह है कि उन्हें अपना ग़ुलाम और अबीद बना लें, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसी मुशरिक का कोई अमल कबूल करने या उसके सिलसिले में कोई शफ़ाअत कबूल करने या आखिरत में इसकी कोई फरियाद पर जवाब देने या इस दिन उसकी किसी उम्मीद को
मुशर्रफ कबूलियत अता करने से साफ इनकार कर दिया है। मैंने आपके सामने बात वाज़ेह कर दी है कि वो मुशरिक का चाहे कितना भी बड़ा अमल क्यों ना हो, शिर्क के साथ उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। और मुशरिक पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दिया है, और उसका जान व माल मुबाह है। जब वो आपसे लड़ाई झगड़े के लिए आए, आपको आपके लिए परेशानियां और मुसीबतें खड़ा कर रहा हो, तो आप भी उसके दिफा में आगे आ सकते हैं। सच तो ये है कि मुशरिक ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ निहायत बदतरीन जहालत का सबूत पेश किया कि उसकी मखलूक में से उसका अयाज़ु बिल्लाह शरीक ठहराया। ये इंतहा दर्जे की जहालत नहीं तो फिर और क्या है। ने दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ परले दर्जे का जुल्म भी है। वो गो के अम्र वाक़े में वो यही मुशरिक और रब पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि इसने खुद अपने नफ्स पर जुल्म किया है, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी तमाम नेमतों को पाते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतने बड़े एहसान को लेते हुए फिर अल्लाह की मखलूक में से किसी को अल्लाह का शरीक बनाए, कितना बड़ा जुल्म है याज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला इसीलिए कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे, उसके अलावा जो कुछ बड़े कभी गुनाह भी हो जाएंगे अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकते हैं। तो इससे मालूम होता है कि इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करके अल्लाह के साथ जुल्म तो नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप पर जुल्म कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, अपना खसारा कर रहा है, और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाने का मौजिब बनता है। अगर कोई शख्स तौबा किए बगैर ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। तो हमको हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई है हमको कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरका बी व अना आलम, कि अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं तेरे साथ शिर्क करूँ और जानबूझ कर, और इस चीज़ की भी पनाह में आता हूँ कि मैं शिर्क करूँ और मुझे मालूम ना हो। तो हम तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा शिर्क से पनाह तलब करते रहना चाहिए। सातवीं चीज़, आखिरी बात यह है कि शिर्क हकीकत में नक्स व ऐब है, नक्स है, ऐब है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इन दोनों खामियों से मुनज़्ज़ह और पाक है। यानी जिसने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया, हकीकत में इसने अल-इयाज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के साथ ऐसी चीज़ साबित की जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात मुनज़्ज़ह और मुबर्रा हो, और फिल वाक़ई ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ इंतहाई दर्जे की दुश्मनी और मुआनदत और मुशाक़्क़ा है। मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि 7 असबाब की बिना पर शिर्क क्यों सबसे बड़ा गुनाह है। तो क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम शिर्क से जो लोग आज लोग करते हैं अल्लाह के साथ, वो तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला मुनज़्ज़ह है, मुबर्रा है, पाक है, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है। तो हम तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए और कमा हक़हू उसका हक़ अदा करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को शिर्क जैसे अजीम गुनाह से महफूज फरमाएँ, चाहे हम जान कर शिर्क करें या अनजाने में शिर्क हो जाए, अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ फरमाएँ और हमारी हिफाजत फरमाएँ। इंशाअल्लाह अगली जो बातें होंगी शिर्क की क़िस्में इंशाअल्लाह अगले दर्स में पेश की जाएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।